लाइक कुछ कंपनीज में होते हैं कि कुछ बड़ा ब्रीच हो गया, देन दे ले ऑफ द सिक्योरिटी टीम। तो कल अगर किसी कंपनी में सारे के सारे साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स वो चले जाते हैं तो क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं कंपनी को? Now, in the world of tech, dosto, we're going to talk about something other than coding, other than software engineering, that is one and only cybersecurity. Because कई लोगों को DSA rounds बिल्कुल पसंद नहीं है. And now you can escape with the most chosen opportunity and most admired opportunity other than coding, जिसको लोग recession free भी कहते हैं. क्या वो recession free है? Let's find out, and let's start with the first episode with one and only Apoor Singh Gautam in the world of cybersecurity. इन्होंने masters की थी, but how you can achieve that without masters and transform your resume from empty to a cybersecurity resume. So सबसे पहले अपूर्व, can you please introduce yourself and how you entered the world of cybersecurity with normal BTech degree from India? Oh yeah, definitely. So thank you for having me, first of all, Arnoor. So basically, my name is Apoor Singh Gautam. I'm from Varanasi, UP. As you said, I did my BTech. So I did my BTech from Symbiosis in Pune. So basic information technology or computer science. During the BTech or even before the BTech, I had interest in cybersecurity. Like I saw somewhere like some training material, like something related to cybersecurity during the time. So I just started exploring it basically, like Google, internet, attending seminars. So I just got interested into it. Like, okay, I want to do cybersecurity. Okay, तो ये बताना सिंपल वेज में व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? मुझे तो इतना पता है कि इट इज रिलेटेड टू प्रोटेक्टिंग डेटा या फिर प्रोटेक्टिंग द कंपनी. I mean, हाँ, basically यही है ना, like anything related to protecting something, and that something can be either person or personal or the company itself. So और उसके अंडर मतलब उसके अगर नीचे डेप्थ में जाओ तो ऑब्वियसली डेटा, एट द एंड ऑफ द डे यू आर प्रोटेक्टिंग सम फॉर्म ऑफ डेटा. ओके, तो अब ये बताना कि सबसे पहले एक मिथ होता है, मुझे लगता है कि साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी फील्ड है व्हिच इज रिसेशन प्रूफ. कहीं पे ऐसा सुनने को नहीं मिलता कि यार ले ऑफ्स फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जरूर सुना जाता है, बट नो वन सेज कि साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स आर गेटिंग लेड ऑफ. आई मीन ट्रू अप टू सम पॉइंट. लाइक अभी आई मीन रिसेशन तो हर जगह होता ही है, लाइक हर एक फील्ड में, AI/ML में भी हो ही रहा है. तो इट्स द लाइक लास्ट ईयर एंड ईयर बिफोर दैट न्यूज़ में बहुत आया है, लाइक इवन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ऑल दीज बिग कंपनीज, दे आर लेइंग ऑफ इवन सिक्योरिटी पर्सन. सो और उसके रीजनिंग्स डिफरेंट हो सकते हैं. लाइक कुछ कंपनीज में होते हैं कि कुछ बड़ा ब्रीच हो गया, देन दे ले ऑफ द सिक्योरिटी टीम, क्योंकि तुम ब्रीच डिटेक्ट नहीं कर पाए, राइट? तो बहुत कंपनीज में ऐसे भी होते हैं. सो दे ले ऑफ द टॉप, लाइक दे कॉल इट CISO, आई थिंक, राइट? चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर. सो दे ले ऑफ देम एंड देन द टीम बिलो इट एंड दे हायर न्यू. सो ये एक सिनेरियो है. बट दूसरा सिनेरियो वही है कि कोविड के टाइम बहुत ज़्यादा लोग को हायर किया गया, तो अब ले ऑफ किया जा रहा है. बट हाँ, लेकिन इफ़ यू से लाइक ऐसे टॉप फील्ड्स जो रिसेशन प्रूफ, इफ़ यू वांट टू से इट, AI/ML, साइबर सिक्योरिटी, इट्स वन ऑफ दोस. तो ऐसे अगर आपको एक गलती से ले ऑफ कर रहे हैं तो थोड़ा डर नहीं लगता इस जॉब में? And by the way, anyone coming to the US should remember that you need to choose secure network providers as well. जैसे मेरी तरह, when I go to India, everywhere I have my US SIM card working thanks to Mint Mobile. Because with Mint Mobile, first of all, you get international roaming options. India में भी Wi-Fi calling से your phone is working and you can talk to your US friends with the number directly. No need to use WhatsApp. Plus, an ability to get 3 months free with my code SYNC. So go check out right now and do not miss this opportunity and switch to Mint Mobile because their plans start from $15 per month. mintmobile.com/sync. तो ऐसे अगर आपको एक गलती से ले ऑफ कर रहे हैं तो थोड़ा डर नहीं लगता इस जॉब में? I mean, depending, like, so I'm not at the top, right? So मेरे responsibilities उतनी है जितना like the people I'm managing and the job I'm doing. Like जो एकदम top पे है, obviously, like it's not just with cybersecurity, with any, right? Like CEO, CFO, CISO, all those C-suite one, they, I mean, उनको ऐसा होता ही होगा ना कि हाँ अगर कुछ गलती हो गया तो they have to be responsible for that. और even just managers, like अगर तुम्हारे मैनेजर या मेरे मैनेजर कुछ गलती किया और इवन तो मैनेजर के नीचे वाली गलती की है तो एट द एंड ऑफ द मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ना. ये तो है. तो डिपेंड करता है कितनी बड़ी गलती हो. हाँ, करेक्ट. हाँ, पर मुझे लगता है कि कई चीज़ों में गलती नहीं होती. हम
साइबर सिक्योरिटी में एक टर्म यूज़ करते हैं, जितना भी मैंने बार बार सुना है, जितने भी कंपनीज में मैंने काम किया है, दैट इज़ ज़ीरो ट्रस्ट पॉलिसी। कि किसी भी चीज़ पे अगर आप काम कर रहे हो, चाहे वो कस्टमर डेटा है, चाहे वो आप कोई भी वेबसाइट विजिट कर रहे हो, आपको ऐसे डिज़ाइन करनी है कि वो हैक होगी। आपको ऐसे डिज़ाइन करनी है कि यार कि आप ट्रस्ट किसी के साथ भी नहीं करते, चाहे वो आपको कोलीग हो। तो हर चीज़ में आपको देखना है कि आई डोंट ट्रस्ट एनीवन, तो ऐसे डिज़ाइन करनी है। I mean, true. Like, I mean, that statement is true. Like, at the end of the day, कोई ना कोई कंपनी, चाहे जितना भी तुम उसमें पैसा डालो, हैक होनी ही है, ब्रीच होनी ही है, डेटा उसका बाहर आएगा ही आएगा। तो वो मेंटालिटी होती है विथ एनी कंपनी। लाइक, अगर डेटा बाहर आ गया तो व्हाट वुड यू डू, एंड लाइक कौन से काउंटर मेजर्स तुम ले सकते हो, क्या कर सकते हो, ये सब चीज़। वो सारी कंपनी, मेरे ख्याल से सारी सिक्योरिटी कंपनीज, दे हैव दैट इन माइंड कि अगर डेटा बाहर आया, लेट्स से तुम्हारी कंपनी का मान लो डेटा बाहर है, तो व्हाट विल दे डू, और व्हाट विल द सिक्योरिटी टीम डू। ओके, तो इस प्रोसेस में इन द वर्ल्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, सबसे पहले तो एक भी चीज़ में डेप्थ में जाने से पहले मैं थोड़ा सा इसे ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी स्मॉल फील्ड्स है साइबर सिक्योरिटी में। Correct, इट्स वेरी वाइड। Yeah. तो थोड़ा सा आप ब्रेक डाउन कर सकते हो कौन से पार्ट्स होते हैं एंड कौन से पार्ट में आप काम करते हो। या श्योर। सो आई मीन, ऑब्वियसली अगर पूरा ब्रेक डाउन करने जाओ 2-3 घंटे का लेक्चर हो जाएगा ये। बट जस्ट एन ओवरव्यू, लाइक ऑब्वियसली सबको पता है ब्लू टीम, रेड टीम, लाइक पीपल हु लाइक डू ऑफेंसिव स्टफ एंड पीपल हु डिफेंसिव स्टफ। ऑफेंसिव स्टफ मतलब लाइक कंपनी, विद इन अ कंपनी देयर इज अ टीम हु अटैक द कंपनी टू सी कितना है उन, मतलब डिफेंसेस कितने देर तक है, मतलब डिफेंसेस कितना तो ब्लू की बात कर रहे हो अभी आप? नहीं, रेड की। अच्छा, रेड की। ओके, हाँ, रेड। तो बेसिकली रेड टीमिंग, ब्लू टीमिंग बहुत लोग सुने होते हैं, तो वहाँ से स्टार्ट किया जाए। तो रेड टीमिंग बेसिकली है कि जो कंपनी में ही दे अटैक द कंपनी इटसेल्फ टू सी द डिफेंसेस। दे ओन कंपनी है किसी और की? नहीं, तो डिपेंडिंग, नहीं, इफ यू आर अ वेंडर कंपनी एंड यू आर गिविंग योर सर्विसेज टू समवन एल्स, तो तुम उनकी कंपनी को अटैक करोगे ना, ऑब्वियसली विद द प्रॉपर परमिशन। बट या बेसिकली डेफिनेशन ऑफ रेड टीमिंग इज यू अटैक समथिंग टू सी how the defenses are holding up, and defensive is basically they protect. So again, red team, blue team, just बहुत general definition है. Then there is a policy, separate policy section, तो वो security policies के तरफ काम करते हैं. It can be anything basic as तुम्हारा normal company policy to as big as like country के policies, like between different countries, like security policies क्या होने चाहिए, all those things. What else? I mean, there is cyber threat intel that I work in. तो बेसिकली उसका है कि यू हैव टू फाइंड द थिंग्स रिलेटेड टू लाइक कंपनी ब्रीच और डेटा ब्रीच बिफोर इट हैपन्स. सो बेसिकली अ प्रोएक्टिव अप्रोच, लाइक लेट्स से गूगल, लाइक अगर गूगल को ब्रीच होने वाला है एंड देयर आर टॉक्स रिलेटेड टू दैट, सो यूजुअली ऑल दीज थ्रेट एक्टर्स they do mention it somewhere, right? Okay, I'm working on this. It's similar to any other project, like you work on it, you post it on LinkedIn, तो उनके भी ऐसे channels होते हैं where they post. So threat intel का basically वो है कि तुम सारा data gather करो, whatever is related to a particular client or company you are working, and you inform them, okay, this is happening. So basically ये है, but again very general definition of threat intel. पर बहुत से ऐसे ब्रांचेस विद इन साइबर सिक्योरिटी हैं, लाइक थ्रेट इंटेल के अंदर मालवेयर एनालिसिस सुने होंगे लोग, और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, ऑल दिस, ऐसे बहुत से डोमेन्स हैं. हाँ, मैंने भी थ्रेट इंटेल में ही काम किया था, जिनको नहीं पता है, बिकॉज वी वर पार्ट ऑफ द सेम टीम इन द पास्ट. क्योंकि थ्रेट इंटेल एक ऐसी चीज़ है, इसमें मैनुअल वर्क बहुत होता है. तो जितना थ्रेट इंटेल में जितना मैंने काम किया, उसमें स्क्रिप्टिंग का ज़्यादा काम होता है, कोडिंग का नहीं होता, बिकॉज स्क्रिप्टिंग एंड कोडिंग आर सिमिलर बट डिफरेंट. करेक्ट. तो आप बताना, आपका काम कितना टाइम स्क्रिप्ट करके डेटा उसे स्क्रैप करना या डेटा को डिटेक्ट करना होता है. सो कैन यू डिस्क्राइब योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितना रिसर्च, कितना स्क्रिप्टिंग, या फिर अदर्स, या फिर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज? श्योर. तो मेरा, आई मीन फ्रॉम माय जॉब टाइटल इज लाइक रिसर्च एनालिस्ट. सो मोस्ट ऑफ द टाइम रिसर्च करना ही होता है, लाइक रिसर्चिंग अबाउट थ्रेट एक्टर्स, रिसर्चिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थ्रेट लैंडस्केप. लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल, कितने रैंसमवेयर अटैक्स हो रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो किस सेक्टर्स में ज़्यादा रैंसमवेयर अटैक्स हो रहे हैं, तो ये सब रिसर्च. कुछ पार्ट्स हैं जिसमें यू हैव टू राइट स्क्रिप्ट्स, लाइक अगेन स्क्रैपिंग स्क्रिप्ट्स हुआ, और इन जनरल ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स.
like for your day-to-day work, automation is very important. Obviously, you can't do everything manually, और इतना time भी नहीं है किसी के पास. तो you automate tasks that you can automate. तो again, for your team, for different teams, for the clients you're working on, you write scripts. But हाँ, mostly normal script writing. ये ऐसा proper coding वगैरह एटलीस्ट मेरे उसमें नहीं है. मेरे ऐसा डे टू डे जॉब में नहीं है. वो ऐसा प्रॉपर इंजीनियरिंग टीम है उसके लिए. तो आई डोंट हैव टू डू. ऑल्सो आई डोंट लाइक राइटिंग, क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग ऐसा प्रॉपर कोडिंग. बट हाँ, स्क्रिप्ट्स नॉर्मल स्क्रिप्ट्स लिखना, दैट इज देयर. काफी स्टूडेंट्स चूज ही इसी कारण करते हैं ताकि उन्हें वो डीएसए वाले इंटरव्यू ना करना पड़े. करेक्ट. तो आई वाज कमिंग टू दैट पॉइंट कि हाँ, लाइक आई लर्नड ऑल दैट, राइट. लाइक इन बीटेक कंप्यूटर साइंस में आई लर्नड ऑल दोज थिंग्स, लाइक डीएसए हुआ और कोडिंग इन एनी लाइक जावा, सी प्लस प्लस, सी वॉट एवर. इट वॉज गुड ऑब्वियसली, लाइक उनके भी सेपरेट वो हैं पर्क्स, बट आई डेंट लाइक डूइंग इट ऑन अ डे टू डे बेसिस. सो दैट्स वाई आई मीन, सो एक जो नोशन है कि हाँ सिक्योरिटी में कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती है, वो इट्स ट्रू अप टू सर्टेन पॉइंट. As I said, there are many domains within security, right? Like there are specific domains where you have to know coding. I mean, apart from Python, Perl, like again, scripting के लिए. Some people have to know Ruby, malware writing or malware उसके लिए. Also for analyzing this, like malware analysis के लिए, you have to know assembly. So assembly is very tough. So उन सब चीज़ों के लिए you have to know all these coding languages. और again there is a separate thing known as security engineering. तो वहाँ तो तुम actually code कर रहे हो ना, like proper production में you are coding, secure code reviews, और वो सब के लिए तो coding आनी ही चाहिए. तो again separate domain है जिसमें coding की ज़रूरत होती है, but my work is not that. Got it. तो अब सबसे पहले थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना ransomware को, क्योंकि काफ़ी ऑडियंस को पता नहीं होगा. It could be interesting for them. Oh yeah, sure. So I mean, basically, ransomware with any other malware or like malicious software is, तुम्हारे कंप्यूटर पे कुछ तुम डाउनलोड किए, you double click on it और सारे फाइल्स एनक्रिप्ट हो गए, and they ask you money. I think majority लोगों को WannaCry से याद होगा. WannaCry बहुत लोग सुने होंगे. I think it was in 2017. बहुत से कंप्यूटर्स पे अटैक हुए थे एंड इट वाज ऑटोमेटेड. तो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स इन्फेक्ट हो गए थे. बट हाँ, आजकल रैंसमवेयर बहुत कॉमन है. लाइक दे जस्ट अटैक सम बिग कंपनी एंड दे आस्क मनी फ्रॉम यू एंड दे ऑल्सो सेल योर डेटा और पोस्ट योर डेटा फॉर फ्री ऑन सम फोरम्स. तो आजकल बहुत कॉमन है. बट हाँ, रैंसमवेयर इज लाइक इफ यू सी टॉप साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, तो उसमें रैंसमवेयर आ ही जाते हैं. क्या ये मेरे क्लाउड बेस्ड डेटा को भी अफेक्ट कर सकता है? जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट्स या फिर काफ़ी बच्चे अपना डेटा आजकल गूगल ड्राइव के फोल्डर में, आई क्लाउड के फोल्डर में, ड्रॉप बॉक्स के फोल्डर में भी साथ में डाल देते हैं, पर वो कंप्यूटर में कहीं पे साइड पे दिख रहा होता है. रैंसमवेयर क्लाउड की डेटा को अफेक्ट करता है कि नहीं? I mean, if it is like अगर वो तुम्हारे कंप्यूटर पे एज अ सेपरेट लाइक लोकल डिस्क एज अ ऐड हो जाता है ना, एज अ पार्टीशन, अगर वो है तो हाँ. बट इफ इट इज जस्ट ऑन द ब्राउजर, दैट्स डिफरेंट एस्पेक्ट. तो हाँ, तो जो लोग लोकली अपने गूगल ड्राइव को बना के रखते हैं, बी केयरफुल. I mean, basically you don't download anything that you don't know or don't click on it. Like, I mean, it's easier said than done, but हाँ. वाओ, ठीक है. अब बात करते हैं द रेज्यूमे स्टूडेंट्स नीड टू बिल्ड टू एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी. तो एक कॉमन स्टूडेंट अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीख रहा है, उसके लिए बहुत आसान होता है कंप्यूटर साइंस का गूगल से कहीं से भी प्रोजेक्ट उठाया, वैसा बनाया, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं. तो अगर एक साइबर सिक्योरिटी फील्ड में किसी को एक एंड टू एंड बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट बनाना हो और प्रोजेक्ट्स बनाने हो, आप क्या गाइड करोगे? Basically, again, like for any software engineering, like you start from Google or GitHub, right? Like everyone in security or in software engineer knows about GitHub. So same as security में भी GitHub पे बहुत से projects हैं. Like you just start googling, right? Like security, cyber security project. Again, as I said, बहुत से fields हैं ना, तो बहुत लोग like pen testing related project बनाते हैं. Pen testing means like it comes under red teaming. तो तुम again you are attacking some system and तुम कैसे अटैक कर रहे हो वो steps list down कर रहे हो और what steps you are taking to attack the company. Just an example,
तो और डिफेंसिव साइड इफ आई टेक लाइक यू कैन start creating alerts rules like firewall rules IDS IPS rules. तो वो सब अगेन ऐसे बहुत छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, वैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं. लाइक यू जस्ट स्टार्ट फ्रॉम गिटहब पे सर्च करो, बहुत लोग अपने प्रोजेक्ट पहले से डाले रहते हैं, यू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम, और इफ़ यू नो समवन इन द फील्ड. तो बेसिकली सिक्योरिटी में ऐसा है कि यू किसी भी फील्ड में लाइक यू लर्न फ्रॉम अदर्स, राइट. लाइक लेट्स से मुझे आज पता चला कि हरनूर ऐसा है, लाइक कैसे किया वो अपना कॉलेज यहाँ किया, स्टार्ट किया एंड्रॉयड है उसमें, कैसे आगे बढ़ा. तो मेरा भी तो ऐसा होगा ना कि हाँ ओ आई कैन डू दैट. तो बेसिकली यू लर्न फ्रॉम अदर्स. और बहुत सारे लोग हैं लिंक्डइन पे, ट्विटर पे और एक्स व्हाटएवर, बहुत लोग हैं गूगल इसमें कि डालते हैं लोग का हाउ आई स्टार्टेड इन साइबर सिक्योरिटी. तो जस्ट लर्न फ्रॉम अदर्स एंड क्या वो लोग प्रोजेक्ट्स डाले हैं, लाइक विच प्रोजेक्ट दे हैव वर्कड ऑन, तुम उनके प्रोजेक्ट्स देखो और फिर यू फॉलो दैट. ओके आई कैन ऑल्सो डू समथिंग बेटर, आई कैन इम्प्रूव समथिंग ऑन देयर प्रोजेक्ट. तुम अपने गिटअप पे डालो एंड अगेन वहाँ से तुम्हारी प्रोफाइल बनना स्टार्ट हो गई. सो आप इस केस में एक एग्जांपल दे सकते हो, एक एंड टू एंड साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं, क्या टेक स्टैक यूज़ हो रहा है, क्या क्या लेयर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी हो रही है, थोड़ा सा हाई लेवल ब्रेक डाउन. Sure. So, I mean, I can take my example also, like with one of the projects that I worked in. तो basically scraping a website था. Like, I had a website, उसको scrape करना था. डार्क वेब. हाँ, so I mean, it can be any website. Like, if I talk about cybersecurity, then it is dark web website. But, like, so अपने college में, I think I was undergrad में, तो just scraping a dark web website, and obviously dark web पे so हर तरह के cyber crime related post हैं उसमें. So for scraping, I had to write scraping scripts. Script writing, I mean, Python is best. So I had to write the Python code. So यहाँ से एक starting हो गया ना कि I selected a website that I wanted to scrape. I wrote, I started finding what I can use to scrape. तो वहाँ पे Python एक आ गया निकल के. Then उसके बाद Python जब मिल गया तो कैसे कोड लिखा जाता है, तो स्क्रिपिंग के लिए बेसिक क्या चीज़ें ज़रूरत होती है, रिक्वेस्ट टू द वेबसाइट, you take the HTML content, you use different Python libraries to get the HTML elements ऐसे. और उसके बाद storage, तो like you have to think about everything, right? Like you wrote the code, you took the website, और storage में you started building a database. फिर database कौन सा use करना है, तो SQL, NoSQL, I mean NoSQL is better, but NoSQL में कौन सा, MongoDB, Elasticsearch, there are a lot, right? तो उसमें से कौन सा चूज़ करना है. तो अगेन ये सब जब तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो तो ये सब सोचना पड़ता है. तो और ये सब ऑब्वियसली राइट लाइक लिखना भी पड़ता है कि लेट्स से आई एम गिविंग एन इंटरव्यू, तो जैसे मैं तुमको समझा रहा हूँ वैसे उनको भी समझा सकता हूँ कि ओके आई फॉलोड दीज स्टेप्स एंड देन आई क्रिएटेड दैट प्रोजेक्ट एट द एंड ऑफ द डे. प्रॉपर प्रोजेक्ट एज इन लाइक इस केस में स्क्रिपिंग के केस में आई हैड ऑल द डेटा इन माई डेटाबेस. Okay. और वही फाइनल प्रोजेक्ट है ये. बट आई मीन अगेन जस्ट एन एग्जांपल प्रोजेक्ट, ऐसे बहुत से हैं. तो ये एंड टू एंड प्रोजेक्ट. बहुत बढ़िया. अब इसी केस में एक अटैक वाला भी प्रोजेक्ट ब्रेक डाउन कर सकते हो, क्योंकि ये तो हो गया साइबर रिसर्च साइड. क्या आपने अटैक बेस, रेड अटैक, ब्लू अटैक, ये वाले प्रोजेक्ट्स पे एक्सप्लोर किए? आई मीन उसमें आई वुड नॉट कॉल इट प्रोजेक्ट, वो मेरे खुद के लर्निंग के लिए आई हैव डन इट. जैसे इफ आई जस्ट टॉक अबाउट रेड टीमिंग, तो ऐसे बहुत से ऑनलाइन क्या बोलते हैं कोर्सेज या ऑनलाइन चैलेंजेस हैं, फ्री एंड पेड बोथ, जिसमें यू कैन गो एंड ट्राई टू सॉल्व इट. इफ आई जस्ट टॉक अबाउट अटैकिंग अ मशीन, सो ऐसे ऑनलाइन बहुत से मशीन्स हैं दैट यू कैन डाउनलोड इट एंड स्टार्ट अटैकिंग इट. तो वो तुम्हारे VM में ही रहेगा, लाइक यू डाउनलोड इट एज अ VM एंड यू स्टार्ट अटैकिंग इट. तो उसमें देखना होता है, पहले नेटवर्क स्कैन करना होता है. अगर कोई वेब सर्विसेज, अब नेटवर्क स्कैन करके पता चलता है कौन से सर्विसेज हैं. वेब सर्विस है तो वेब सर्विस स्कैन करो, उसमें कोई वल्नरेबिलिटी है कि नहीं. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देन यू पिवट ऑफ टू अदर थिंग्स एंड देन अगर वल्नरेबिलिटी निकल गया तो उसका एक्सप्लॉइट फाइंड करो. एक्सप्लॉइट आ गया तो फिर देखो एक्सप्लॉइट से तुम मशीन के अंदर घुस पा रहे हो कि नहीं. अगेन ऑल दीज थिंग्स यू राइट डाउन इन अ डॉक्यूमेंट, एंड जब भी कभी बात हुई लाइक रेज्यूमे या ऐसे दिखाने के किसी को कि हाँ तुम क्या किए हो सिक्योरिटी में, तो बस ये ऐसे दिखा सकते हो कि आई डिड ऑल दी स्टेप्स, आई फॉलोड दिस. तो ये एक एग्जांपल हो गया रेड टीमिंग का. अगर ब्लू टीमिंग का एग्जांपल लेना है तो इट वुड बी लाइक मालवेयर एनालिसिस ही ले लो. आई मीन आई नो इट्स डिफिकल्ट स्टार्टिंग में, लाइक असेंबली वगैरह सीखना पड़ता है, बट अगेन इट इज़ अ प्रोजेक्ट एग्जांपल कि तुम एक मालवेयर ले लिए कोई भी
और तुम उसका पूरा एनालाइज किए और ब्लॉग लिखे या रिपोर्ट लिखे। तो वो एक एग्जाम्पल हो गया प्रोजेक्ट का। अब इस स्किल से दोस्तों, ये प्रोजेक्ट से आप रेज्यूमे बना सकते हो। और अगर रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स के अलावा अगर मुझे बाकी चीजें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्ल्ड में ट्रांसफर करनी हो, तो शायद मुझे करनी भी ना पड़े, बस थोड़ी स्क्रिप्टिंग स्किल ज्यादा ऐड करनी पड़ेगी, राइट? टेक्नोलॉजीज में पाइथन हो गया, और क्या क्या आपको लगता है जो स्किल्स का सेक्शन है मेरे रेज्यूमे में, क्या एक्स्ट्रा ऐड होगा फॉर द वर्ल्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी? आई मीन इफ यू हैव फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो ऑब्वियसली कोडिंग तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो तुम वो ऐड कर ही सकते हो सारा, लाइक इवन पाइथन और जावा वॉट एवर यू नो, क्योंकि एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज स्विच करने में इतना टाइम नहीं लगेगा तुमको। ट्रू ट्रू। तो यू ऐड ऑल दैट। और इफ़ यू आर वर्किंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तुमको पहले से पता होगा लाइक सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल क्या है, क्योंकि सिक्योरिटी में स्विच होने के बाद कुछ कुछ चीज़ें लाइक एवरी अदर फील्ड हैज़ ट्रांसफरेबल स्किल्स टू गो इन टू सम अदर फील्ड ऑब्वियसली, राइट? तो इस केस में भी तुम अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह स्विच कर सकते हो। ओके, आई डिड ऑल दिस प्रोजेक्ट, उसमें एक सिक्योरिटी का ट्विस्ट डाल दो अगर बताना ही है तो। लाइक यू क्रिएटेड सम लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोई भी एक प्रोजेक्ट है, यू क्रिएटेड वेबसाइट, राइट? तो उसमें तुम सिक्योरिटी के लिए क्या क्या किए, लाइक इफ द वेबसाइट हैज़ लॉग इन तो उसमें कौन कौन से चेक्स लगा रहे हो, तो ये सब सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से। तो आई मीन जो इंटरव्यू ले रहा है तुम्हारा, वो जानना चाह रहा है कि तुम सिक्योरिटी में तुम्हारा दिमाग कैसे है, लाइक ही नोज और ही और शी नोज लाइक तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या किए, बट इधर आके तुम सिक्योरिटी की तरफ उसको कैसे सोच पा रहे हो। तो ये स्किल्स में ये सब आ जाएगा, लाइक ऑल द प्रोजेक्ट्स यू वर्कड ऑन, कौन से लैंग्वेजेस हैं, सॉफ्टवेयर कौन से यूज़ किए, वो सब भी आ जाएगा, फ्रेमवर्क्स वगैरह कौन से यूज़ किए। सिक्योरिटी के लिए अगर तुम प्रोजेक्ट किए, जैसे आई टोल्ड ऑल दिस VM ब्रेक करना, लाइक उसमें अटैक करना, या मालवेयर एनालिसिस के लिए, तो मालवेयर एनालिसिस के लिए कौन से टूल यूज़ किए, वो सब टूल्स लिस्ट कर सकते हो अपने स्किल्स में कि आई नो ऑल दीज टूल्स, तो वो भी स्किल हुआ। गॉट इट। तो काफी सारी सिमिलैरिटीज है, आपको कुछ रिमूव करने की जरूरत नहीं है। हाँ नहीं, रिमूव करने की ऐसा सच कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इट इज़ एडिंग टू योर रेज्यूमे, राइट? लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से मेरे बहुत से हैं जो 3 साल 4 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्रॉपर वर्क किए और फिर सिक्योरिटी में स्विच कर लिए, क्योंकि देखिए लाइक देयर इज़ अ पोटेंशियल फॉर देम देयर, और उनका दिमाग वैसा था कि हाँ सिक्योरिटी में दे कैन थ्राइव। तो वो लोग ऐसे पीछे से कुछ नहीं हटाए, बस सिक्योरिटी के लिए ऐड ऑन किए। ओके, तो अब इन द वर्ल्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, इमेजिन करो कल अगर किसी कंपनी में सारे के सारे साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स या हैकर्स फायर हो जाते हैं, वो चले जाते हैं, तो क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं कंपनी को? क्योंकि मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ पॉइंट कि ये रिसेशन प्रूफ है कुछ हद तक। आई मीन लाइक वो तो एज वी डिस्कस, वो रिसेशन प्रूफ इस रीज़न से ही है कि लाइक अगर तुम्हारे कंपनी में या इन जनरल कोई सिक्योरिटी पर्सन नहीं है, तो यू कैन बी फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक कौन देख रहा है कि यू आर सिक्योर फ्रॉम आउटसाइड अटैक्स। इट कैन बी आइदर नेटवर्क अटैक, इट कैन बी सोशल इंजीनियरिंग की यू आर अटैकिंग अ पर्सन, एक्चुअल पर्सन, लाइक उनको फिशिंग ईमेल दे रहे हो, तो ये तो सिक्योरिटी टीम ही हैंडल करती है ना। ऑब्वियसली कॉमन ह्यूमन नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत कि अच्छा लिंक पे क्लिक नहीं करना है, लेकिन आजकल इतने ज़्यादा एडवांस, और चैट GPT यूज़ कर लो, इतने ज़्यादा एडवांस ईमेल्स बनने लगे हैं और अटैक वेक्टर्स आ गए हैं कि खुद बचना बहुत मुश्किल है। तो एज एक सिक्योरिटी टीम तो होना ही चाहिए। आई मीन आइडियली तो एक से ज़्यादा लाइक सिक्योरिटी में एज वी सेड लाइक बहुत से ब्रांचेस है, तो बहुत सारे टीम्स होते हैं, बट हाँ अगर तुम पूरा सिक्योरिटी हटा दो तो हाउ इज समवन सेफ? एब्सोल्युटली राइट। कोई भी कंपनी सेफ कैसे है? ट्रू। अब बात आती है जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। जब भी कोई बड़ी बड़ी जॉब डिस्क्रिप्शंस देखता है आजकल अप्लाई करने के टाइम, वो डर जाते हैं कि यार वो फिट नहीं करते। तो जब आप अपनी अप्लाई कर रहे थे जॉब के लिए, हाउ मच यू थिंक यू फिट इन द जॉब डिस्क्रिप्शन, एंड बाकी कितनी परसेंटेज चीज़ें आप जॉब में जाके सीखते हो? क्योंकि आजकल अभी भी सारी साइबर सिक्योरिटी वाली जॉब भी कोडिंग मांग रहे हैं कहीं ना कहीं। आई मीन मांग रहे हैं, एंड अ लॉट ऑफ साइबर सिक्योरिटी जॉब्स 3 to 5 years एक्सपीरियंस भी मांग ही रहे हैं। बट द थिंग इज लाइक ऑब्वियसली तुमको 100% नहीं आना चाहिए। लाइक अगर आ रहा है तो तुम जॉब वो ही मत करो, तुम किसी और उसमें मतलब तुम कुछ नहीं सीखोगे ना अगर तुमको जॉब मिल भी गया तो ऐसे उसमें जाना चाहिए जिसमें तुमको लाइक एनीवेयर फ्रॉम 50 to 70% उस स्किल्स में से आ रहा है, या तुम किए हुए हो या तुम कर सकते हो ऐसे लाइक अप्लाई करने के पहले कर सकते हो, एंड देन यू लर्न रेस्ट। तो या 50 to 70% अगर आ रहा है तुमको स्किल्स तो यू आर गुड, लाइक यू कैन अप्लाई टू दैट। इवन कभी कभी ऐसा होता है लाइक दे पुट ओ सीनियर थ्रेड रिसर्चर लेट्स से, राइट, एंड आई एम जस्ट स्टार्टिंग आउट,
बट अगर सीनियर थ्रेट रिसर्चर में उन लोग ऐसे ऐसे लिखे हैं स्किल्स दैट यू थिंक दैट यू हैव डन इट ऑलरेडी, लाइक यूजिंग किसी प्रोजेक्ट पे या किसी और ऐसा वॉलंटियरिंग करके, तो यू कैन काउंट दैट एज अ एक्सपीरियंस, लाइक ओके आई हैव डन दिस इन एक्चुअल एनवायरनमेंट, लाइक एक्चुअल किसी कंपनी या स्टार्टअप हो या ऐसा वॉलंटियर ग्रुप हो, वहाँ मैं कर चुका हूँ. एंड उसके बाद फिर यू अप्लाई. इंटरव्यू होना वो तो उन पे है ऑब्वियसली, बट ऑब्वियसली ऐसा पहले मत करो कि हाँ अप्लाई ही ना करो कि हो ही ना. सही कहा, क्योंकि डरना नहीं है बड़ी बड़ी जॉब डिस्क्रिप्शंस पढ़ के, बस किसी ना किसी तरीके से अप्लाई कर देना, बिकॉज आपको ये सोचना है कि दूसरे बंदे भी यही सोच रहे हैं और खुद बीट द रेस. एब्सोल्युटली. एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मेरा ये आता है कि हर प्रोजेक्ट में ना प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं. क्या प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी दोनों साइबर सिक्योरिटी का पार्ट है? बिकॉज जैसे मैंने जितना काम किया है, कोई भी चीज़ मैं अपने कोड में करता हूँ ना, तो एक प्राइवेसी टीम से पूछ लेता हूँ, एक सिक्योरिटी टीम से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ. बड़ी कंपनीज में तो ऐसा होता है. क्या यूजुअली दोनों चीज़ें साइबर सिक्योरिटी टीम के अंदर होती है? आई मीन अगर कंपनी छोटी है तो हाँ, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी गो हैंड इन हैंड, बट ऐसा टेक्निकल पे जाओगे तो ऐसे दोनों बहुत अलग हैं. बट अगेन एज आई डिस्कस्ड अर्लियर कि ऐसे वो पॉलिसी वाला जो अलग से पूरा टीम है, तो प्राइवेसी पॉलिसी थोड़ा हैंड इन हैंड जाता है अगर ऐसे देखोगे तो, और टेक्निकल साइबर सिक्योरिटी थोड़ा अलग चलता है. बट ऑब्वियसली बड़े कंपनी में जैसे तुम्हारे कंपनी में लाइक अलग अलग टीम्स हैं उसके लिए, तो दे स्टडी ऑल, लाइक प्राइवेसी वाले वो प्राइवेसी लॉज ही स्टडी किए हैं, तो उनको और कुछ नहीं है, प्राइवेसी लॉज पॉलिसीज ये सब पता है, तो इसलिए उनको ज़्यादा पता होगा. बट ऐसे छोटी कंपनीज में ऑब्वियसली एक ही टीम रहेगी जिनको दूसरा प्राइवेसी लॉज वगैरह भी जानने होंगे, जिस कंट्री में काम कर रहे हैं उस हिसाब से. एंड रेस्ट दोस्तों, आप अपूर्व की लिंक्डइन प्रोफाइल पे यू कैन फाइंड न्यूमेरस ब्लॉग्स जिसमें इन्होंने अपनी जर्नी, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्क्राइब किया है, which you can take inspiration from and get into the world of cybersecurity as well. क्योंकि it is not just about learning, it is about doing. जितना आप effort खुद से डाल के projects बनाते हो, that will every time count. So, thank you so much, Apoorv. बहुत अच्छा लगा. Any final words you want to say? I mean, just keep going. Like आजकल सब चीज़ ऑनलाइन मिल रहा है, तो just Google, जो जिस भी डोमेन में जाना है साइबर सिक्योरिटी के, just Google that, learn from others and keep going. Yeah, thank you so much. Yep, Yeah, thank you. Thank you. Oh, I just wanna be your Superman.